اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو وار ہے یہ اور ایگریویٹ ہونے والی ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں اور نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو رجیم چینج ہی کرنی ہے. جو فیول کرائسس اور جو پیٹرول کرائسس پوری دنیا میں ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک اکنامک ریسیشن کی طرف کہیں نہ چلے جائیں. ایک یہ ہے جینوئن کرائسس لیکن ایک آرٹیفیشل کرائسس بھی کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ ہیں ان کی پرابلمز بڑھائی جا سکیں. اس وقت کیا پبلک پہ مزید پریشر ڈالنا ٹھیک آئیڈیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جو مہنگائی ہے یا جو انفلیشن کی فگرز ہیں وہ اور زیادہ خراب ہو جائیں. یہ جو انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی ہیں اس کا جو بھی امپیکٹ ہو وہ کم سے کم پبلک کو بیئر کرنا پڑے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سولوشن ہے جس کی بات کی جا رہی ہے. ہر کسی نے یہ سوچا تھا کہ یہ مڈل ایسٹ کا کرائسس اور یہ وار کچھ دنوں میں رک جائے گی اور سینس پریویل کرے گا, لیکن انفارچونیٹلی وی آر ویری فار فرام سینس پریویلنس اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو وار ہے یہ اور ایگریویٹ ہونے والی ہے. مجتبی خامنائی کو نامینیٹ کیا گیا ہے ایز دا نیکسٹ ایرانین سپریم لیڈر اور اس کے بعد سے معاملہ اور انٹینس ہو گیا ہے. اب نیوکلیئر پروگرام ختم کریں اس کی بات کوئی کر بھی نہیں رہا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں اور نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو رجیم چینج ہی کرنی ہے اور خامنائی کی فیملی سے ہمیں کوئی بھی پسند نہیں ہے, ہمیں کوئی بھی قبول نہیں ہے اور جو بھی اگلا بندہ آئے گا ہم اس کو بھی ٹارگٹ کریں گے. یہ اب دھمکی دی گئی ہے. اور ایون ایران کی طرف سے اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی بیک چینل ٹاکس, نیگوسیشنز, میڈیشنز کچھ بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اب جو ہے یہ ایک اوپن وار ہے اور اسی طرح سے چلا بھی جا رہا ہے. اور ایسے میں آذربائیجان کی طرف سے ایک آذربائیجان پہ بھی اٹیک ہوا جس کو ایران نے کہا کہ یہ ہم نے نہیں کیا. پھر سعودی عربیہ کی جو آرامکو آئل ریفائنری ہے اس پہ بھی جو اٹیک ہوا تھا امپورٹنٹلی وہ بھی ایران نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں کیا تھا. تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ شاید اور مزید جو ایون جو یو ایس الائز ہیں ان کو بھی یو ایس اور اسرائیل کی طرف سے بومب کیا جا رہا ہے. اسرائیل کی طرف سے خاص طور پر ان کو بومب کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا بھی الزام ایران پر لگایا جا سکے اور پھر ایران کے ساتھ ایک مطلب باقی بھی جو جتنے کنٹریز ہیں جو یو ایس کے الائز ہیں مڈل ایسٹ میں ان کو مزید ایران کے اگینسٹ ان کو پمپ کیا جائے اور یہ جو وار ہے اس میں اور زیادہ کنٹریز کو انکلوڈ کیا جائے. پھر نارتھ کوریا کی طرف سے بھی اب یہ بیان آیا ہے ایران کے سپورٹ میں کہ اگر آپ کو ہماری طرف سے میزائلز چاہیے تو آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو میزائلز بھی دینے کو تیار ہیں. اور کم جونگ ان کا پہلے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بہت آپ کو پتا ہے اس کی ایک ہسٹری ہے اینڈ دے گو بیک اے لانگ ٹائم. ان دونوں کا پہلے بھی ایک بہت سخت قسم کا مسئلہ رہا ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ اگر نارتھ کوریا بھی اس پوری چیز میں آ جاتا ہے اور اگر ایران ان سے بھی ہیلپ مانگ لیتا ہے تو یہ معاملہ بہت آگے بڑھ جائے گا. اور ایسے میں جو فیول کرائسس اور جو پیٹرول کرائسس پوری دنیا میں ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک اکنامک ریسیشن کی طرف کہیں نہ چلے جائیں. اس کا بھی ایک بہت اہم فیئر موجود ہے کہ جو 2011-10 میں جو اکنامک کرائسس ریسیشن آیا تھا, گلوبل ریسیشن تھا جس کے بعد سے پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹس گر گئی تھیں, اس کے بالکل اس کے جیسا ٹرینڈ ہمیں اس دفعہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک گلوبل ریسیشن کی بات کی جا رہی ہے. پاکستان کی اسپیسیفک بات بھی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان انفارچونیٹلی ایسے ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پر جو کچھ ایسے مافیا ہیں یا ایسے کچھ گروپس ہیں جو کہ ہر طرح کے کرائسس کو اپنے فائدے کے لیے اس کو ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں سے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. جیسے کہ رمضان, ابھی ہم رمضان میں بیٹھے ہیں, ہر ملک میں رمضان پہ لوگ جو ہیں وہ پیکیجز دیتے ہیں اور قیمتیں کم کرتے ہیں, پرائز گراتے ہیں. پاکستان میں بالکل الٹا حساب ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں الٹا رمضان کے دنوں میں ہورڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور اوور پرائسنگ شروع ہو جاتی ہے. لوگ سستی چیزوں کو مہنگے داموں میں بیچنے لگتے ہیں اور ہورڈنگ کرنے لگتے ہیں. اور رمضان میں الٹا یہ کہ ایز اے ہیومینٹی جیسچر آپ مدد کریں, الٹا یہ کہ رمضان میں پاکستان میں ایک مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے, انفلیشن بڑھ جاتی ہے. اس دفعہ بھی ہم کچھ الگ نہیں دیکھ رہے, اس دفعہ بھی یہی چیزیں ہمیں اس کرائسس میں بھی نظر آ رہی ہیں. کس طرح سے کہ جو اب یہ پیٹرولیم کے جو پیٹرول پمپس ہیں اور جو ان کی جو پیٹرول کی جو ڈیلرز کی ایسوسیشن ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے پاس 2 دن سے زیادہ کا تو پیٹرول کا سٹاک ہی نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 28 دن کا سٹاک پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس بیک اپ پلان ہے. لیکن جو پیٹرولیم کی جو ڈیلرز ایسوسیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سٹاک ہی نہیں ہے. اگر آپ لوگوں نے ابھی پرائسز نہیں بڑھائے تو ہم لوگ 2 دن بعد سارے پیٹرول پمپس کو بند کر دیں گے. ایک پبلک میں ایک پینک کریٹ کر دیا گیا ہے پیٹرولیم کی جو ڈیلرز ایسوسیشن ہے ان کی طرف سے اور پبلک کو پینک بائنگ کی طرف لگا دیا گیا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ریزلٹ یہ ہے کہ اب پاکستان کے ہر شہر میں, ہر گاؤں میں
छोटे से छोटे पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी गाड़ियों की लाइंस लगी हुई हैं और हर कोई जाकर कुछ लोग जो हैं वो बॉटल्स भी ले लेकर जा रहे हैं कि उनको पेट्रोल मिल जाए। और पेट्रोल पंप्स भी जो हैं वो एक अपनी इस पूरी चीज में इजारादारी चला रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हम 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं देंगे, कुछ कहते हैं हम इतना पेट्रोल देंगे, ये इतना होगा। मुझे अच्छा लगा कि डीसी इस्लामाबाद ने ट्वीट करके बोला कि अगर आपको कोई पेट्रोल देने से कोई पेट्रोल पंप मना कर रहा है तो आप उसकी शिकायत करें। इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट का जो क्लेम है वो क्लेम ठीक है कि अभी पेट्रोल के स्टॉक्स हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो डीलर्स की एसोसिएशन है या जो पेट्रोल पंप्स हैं ये सारे मिलकर एक हो गए हैं और ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है किसी तरह से 1-2 दिन के अंदर अंदर पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दे। उससे क्या होगा कि जो इन्होंने पहले का स्टॉक लेके रखा है, खरीद के रखा है, वो जो स्टॉक है ये लोग महंगे दामों बेच पाएंगे और जब तक कीमत नहीं बढ़ाई जाती तब तक पेट्रोल पंप्स जो हैं वो पब्लिक को कह रहे हैं कि हम आपको 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं देंगे, इतने से ज्यादा इतना नहीं देंगे। और पैनिक बाइंग होने की वजह से डेफिनेटली जाहिर है पेट्रोल की वैसे भी एक शॉर्टेज जो नहीं है वो शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो लोग भी पेट्रोल लेने आ रहे हैं होर्डिंग करने के व्यू पॉइंट से। पब्लिक का भी यहाँ पर एक बहुत एक गलत परसेप्शन है कि जब उनको लगता है तो एक फियर बाइंग, पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है। वही पैनिक बाइंग इस दफा हो रही है और एक आर्टिफिशियल क्राइसिस। देखिए, एक है जेन्युइन क्राइसिस, इसमें कोई शक नहीं कि अभी कोई $90 पर बैरल से ऊपर चला गया है क्रूड ऑयल, लेकिन एक ये है जेन्युइन क्राइसिस, लेकिन एक आर्टिफिशियल क्राइसिस भी क्रिएट किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ाई जा सकें। और कुछ लोग ये समझते हैं कि इस वक्त प्रेजेंट डे क्राइसिस से हम अगर और ज्यादा प्रॉफिट्स ले सकते हैं तो व्हाई नॉट। ये जो एक नेगेटिव सोच है ये इस दफा फिर अनफॉर्चुनेटली नजर आ रही है, उसका एक एप्रीहेंशन है और उसका एक बहुत बड़ा फियर है जो कि हमारे अंदर मौजूद है कि ये पेट्रोल पंप्स जो हैं ये अचानक से क्यों कहने लग गए हैं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है। और ये जो पैनिक है ये गवर्नमेंट ने क्रिएट नहीं किया है, ये इन पेट्रोलियम की जो डीलर्स की एसोसिएशन है ये इन्होंने क्रिएट किया है, ये कहकर कि हमारे पास पेट्रोल के स्टॉक्स नहीं है और 2 दिन बाद अगर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाते हैं तो हम पेट्रोल पंप्स पूरे मुल्क में बंद कर देंगे। अब ये बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है जिसको गवर्नमेंट ने डील करना है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी क्या गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि ये जो इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि हम वीकली बेसिस पे जो है वो पेट्रोल को रिविजिट करेंगे और हर हफ्ते की बुनियाद पर हम पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देंगे, क्या गवर्नमेंट ऐसा करके इन होर्डर्स को इनकरेज तो नहीं कर रही है? ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि अगर आप पुराने स्टॉक अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो फिर आप उसकी प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं? आप अगर अब कोई परचेज कोई बाइंग करने जाते हैं अभी फ्रेश मार्केट से, उसकी प्राइस तो आप बढ़ाएंगे, लेकिन उसकी प्राइस क्या अभी बढ़ जानी चाहिए या बाद में बढ़नी चाहिए? ये एक जरूरी सवाल है। और अगर आप प्राइस अभी बढ़ा देते हैं तो क्या पहले से लिया हुआ जो सस्ते की कीमत पे लिया हुआ फ्यूल है ये सारे पेट्रोल पंप फिर ऊंचे दामों में बेचेंगे तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स को आप लोग क्यों एनकरेज कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट से भी एक बहुत जरूरी सवाल है कि आप, अच्छी बात है कि अगर डीसी ने कहा है कि हम विजिलेंस कर रहे हैं और हमसे शिकायत लगाएं कि जो पेट्रोल पंप आपको पेट्रोल नहीं दे रहा, लेकिन फिर गवर्नमेंट से भी ये पलट कर सवाल बनता है कि आप लोग एक प्री एम्प्टिवली क्यों आप प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं? क्या आप इनके प्रेशर में आ रहे हैं? आप अपनी बात पर कायम क्यों नहीं रह रहे हैं कि हमारे पास 28 दिनों का पेट्रोल है और वो हम पहले से ले चुके हैं, तो उसकी प्राइस हम अभी से आवाम को बढ़ाकर क्यों मुंतकिल करें? और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखें, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कई सारे आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस की तरफ जाया जाए, विच आई थिंक इज वेरी लेजिटिमेट। इस वक्त क्या पब्लिक पे मजीद प्रेशर डालना ठीक आइडिया होगा? हो सकता है आने वाले दिनों में जो महंगाई है या जो इन्फ्लेशन की फिगर्स हैं वो और ज्यादा खराब हो जाएं। क्या आप लोग पब्लिक को इस मौके पर, और ईद भी आने वाली है, ईद के दिनों में पब्लिक को रिलीफ देना और रमजान के दिनों में पब्लिक को रिलीफ देना हर गवर्नमेंट का फर्ज होता है। ऐसे में क्या गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए कि वो अपने जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब कम कर दे? से फॉर एग्जाम्पल अब ये जो मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट का आया है कि उनके गवर्नमेंट जो है कोई जो उन्होंने ये जो प्लेन लिया हुआ है, जो ये गल्फ स्ट्रीम का जो लग्जरी जेट लिया हुआ है, उसके 2 पायलट्स जो हैं वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट किस्म के सैलरीज पर बाहर से हायर किए हुए हैं और वो जो फॉरेनर्स हैं वो पायलट हैं उस गल्फ स्ट्रीम लग्जरी जेट के। ये मोहम्मद मालिक की खबर है, लेकिन और इसको अभी तक किसी ने डिनाई नहीं किया है पंजाब गवर्नमेंट से। और पंजाब गवर्नमेंट से जब भी आप पूछते हैं उस जेट के बारे में तो वो हमेशा कोई इधर उधर का जवाब देते हैं। तो क्या गवर्नमेंट अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कम नहीं कर सकती? क्या ये जो साथ साथ मोर और लेस जो ये वफाकी भी जो कैबिनेट के लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ जो गाड़ियों का प्रोटोकॉल है, एक पूरा का पूरा एक काफिला चलता है मिनिस्टर्स के साथ
प्रोविंशियल मिनिस्टर्स अलग हैं, फेडरल मिनिस्टर्स अलग हैं, क्या फेडरल मिनिस्टर्स से लेकर सारे सूबों के प्रोविंसेस के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने प्रोटोकॉल को कम नहीं कर सकते? फिर जो सरकारी पेट्रोल मिलता है, जो फ्री के जो ये पीआईए की जो एयर टिकट्स मिलती हैं, जो एयर टिकट्स का एक अलाउंस है, क्या उसको गवर्नमेंट को कम नहीं करना चाहिए? क्या सारे अपने एमएनएस को ये नहीं कहना चाहिए कि आप लोग अपनी आमदोरफ्त बंद करें? इस तरह की तरफ इस तरह के प्लान की तरफ क्यों नहीं जाया जा रहा? एक वही कन्वेंशनल जो तरीकाकार है, क्या हर दफा वो प्रैक्टिस करना जरूरी है कि जो भी जो है क्राइसिस आए वो आप अवाम के ऊपर उसको जो है वो फेंक दें कि आप जाने, आपका काम जाने? आई थिंक गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन। गवर्नमेंट को कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचने चाहिए ताकि अवाम के ऊपर प्रेशर कम से कम पड़े। अभी पॉवर्टी के, गुर्बत के जो फिगर्स आए हैं वो वैसे ही बहुत परेशान कुन हैं। मुल्क में गुर्बत, पॉवर्टी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, उसके फिगर्स बहुत परेशान कुन हैं। इन्फ्लेशन भी मजीद बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। ऐसे सारे सिनेरियो में क्या ऑलरेडी बर्डन हुई भी अवाम के ऊपर मजीद बर्डन डालना ठीक रहेगा? पेट्रोलियम लेवी की एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम लेवी इस वक्त जो उसके ऊपर एक कैप था, जो एक लिमिटेशन थी, वो खत्म कर दी गई है। जो एक पार्लियामेंट की लिमिटेशन थी पेट्रोलियम लेवी के ऊपर, वो खत्म करके तकरीबन 100 रुपए पर लीटर की पेट्रोलियम लेवी जो है ली जा रही है। पेट्रोलियम लेवी के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उससे टैक्स आता है या जो उससे हुकूमत कमाई करती है वो सिर्फ वफाक तक रहती है, वो प्रोविंसेस में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती, वो फेडरल गवर्नमेंट की ही हद तक रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट आती है, जिस भी पार्टी की होती है, वो हर दफा पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं, जीएसटी नहीं बढ़ाते। क्योंकि जीएसटी अगर बढ़ाएंगे तो फिर वो उससे जो भी कमाई होगी वो सूबों को भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं तो उसकी जो कमाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट तक रहती है। तो क्या अब इस वक्त गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि आपने जब इतने महीने से ऑलरेडी पब्लिक को बर्डन करके रखा हुआ है 100 रुपीज का लेवी लगाकर हर लीटर पर, तो अब ये मौका है आप वो लेवी कम कर दें पब्लिक के ऊपर से, ताकि ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं उसका जो भी इंपैक्ट हो वो कम से कम पब्लिक को बेयर करना पड़े। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है जिसकी बात की जा रही है। सो गवर्नमेंट को आई थिंक कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचना चाहिए। और ये बिल्कुल पब्लिक के साथ, वरना ज्यादती है कि अगर कोई एक क्राइसिस आया है जिसमें इस पब्लिक का, आवाम का कोई लेना देना नहीं है, आप सारा का सारा उसका जो बर्डन है वो सारा का सारा पब्लिक पर डाल दें। सो आई थिंक ये बड़ा अनजस्ट है। और जो ये स्कूल्स और जो वर्किंग आवर्स की बात है कि स्कूल्स जो है बंद किए जाएं या उनको ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाया जाए या ऑफिसेज को भी वर्क फ्रॉम होम किया जाए, उस पर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर वो प्लान दें ताकि ऑयल कंजम्पशन कम हो। उसके ऊपर भी एक एक मिक्स्ड से वो व्यूज आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी ये अगले हफ्ते में पास होगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये पास ही नहीं होगा, ये कोई बात एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं कि हाँ, वर्क फ्रॉम होम पे और ऑनलाइन क्लासेस पे गवर्नमेंट बड़ा सीरियसली सोच रही है। अगर ये सीरियसली सोच रहे हैं, जो कि मेरे सोर्सेज मुझे कंफर्म करते हैं गवर्नमेंट से, तो उनको चाहिए फौरी तौर पर इस प्लान को पब्लिक के सामने लाएं, इसको पब्लिक करें, इसको अनाउंस करें, ताकि ये कि इसके ऊपर जो एक कंफ्यूजन है वो खत्म हो और जो पैनिक बाइंग है थोड़ी सी वो भी कम हो। क्योंकि लोगों के भी माइंड में आए कि हमारी कंजम्पशन भी कम हो रही है, हमें इस तरह से पेट्रोल को लेकर घरों में जमा करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इस पैनिक बाइंग को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट जो मेजर्स ले सकती है, मेरा ख्याल है उनको फौरन लेने चाहिए। और सबसे पहले ये जो वीकली बेसिस पर ये जो कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया है, इसको भी फौरी तौर पर वापस करना चाहिए, बिकॉज इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उन पेट्रोल पंप्स को होगा कि जो कि इस वक्त पेट्रोल को रोक कर महंगे दामों में बेचने में इंटरेस्टेड है।